So next we are going to study about the judiciary. Okay. So the most important function of the judiciary is to protect the rights of the citizen. Okay. To protect their fundamental rights and also you can say to protect the constitution. Okay. So India में अगर democracy के three you can say वो ऑर्गन्स देखे जाए दैट इज एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एज वेल एज जुडिशरी। तो इसमें जो ये थर्ड ऑर्गन है दैट इज जुडिशरी, दैट इज द ओनली इंडिपेंडेंट ऑर्गन इन द गवर्नमेंट। अब इसमें ये जो थर्ड ऑर्गन है दैट इज जुडिशरी, ओनली दैट इज इंडिपेंडेंट, बाकी एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेटिव पर डिपेंडेंट है। ओके, गॉट इट। सो नाउ जुडिशरी का काम क्या होता है? टू प्रोटेक्ट द rights of the citizen, to safeguard the rights of the citizen. Second, to protect their fundamental right, to safeguard the constitution, and also to control the government so that government cannot work in its own way. Okay, उनकी पावर पर कंट्रोल लगाना, ओके, सो दैट गवर्नमेंट डिस्पोटिक ना हो, ओके, उसके पास अनकंट्रोल्ड पावर ना हो, दैट इज द function of the judiciary. Okay, means he is the interpreter of the constitution. Okay, constitution का interpreter है, जो भी rights होती हैं citizen की वो protect कौन करता है? Judiciary. Got it? Next we are going to study about the Supreme Court. Supreme Court, that is the topmost institution of the country, or that is also known as apex court. Okay, so अब हम Supreme Court की बात करें तो first is number of the judges. So presently there are 30 judges and 1 chief justice in the Supreme Court. अभी अगर देखें तो there are 30 judges and 1 that is CJI, Chief Justice of India. But Article 124 of the Constitution has provided that Parliament can increase the number of the judges. Okay, Article 124 के according Parliament क्या कर सकता है? इनके जो numbers हैं वो increase कर सकता है। Second is appointment of the judges. Appointment of the judges of the Supreme Court are made by the President in consultation with the Chief Justice of India. Okay, President क्या करेगा? Chief Justice से consult करेगा and then दूसरे जजेस को क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करेगा। थर्ड इज क्वालिफिकेशन ऑफ द जजेस। ओके, अब क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस क्या होती है? First qualification is he should be a citizen of India. Second qualification, he should work as a higher court judge for minimum of 5 years, or he should work as an advocate in the high court for at least 10-year duration. Okay, 10 साल तक हाई कोर्ट में ऐसा एडवोकेट रहा हो या 5 साल तक हाई कोर्ट का जज रहा हो। इन दैट कंडीशन he will be eligible for the Supreme Court judge. Got it? As well as third is he should be a distinguished jurist in the view of president. President की आइज में वो distinguished jurist होना चाहिए। Okay? Next is tenure of the judges and procedure of the impeachment. अब ये जो judges का tenure होता है that is up to the 65 years of age. Okay, 65 years of age तक वो अपने ऑफिस में रह सकते हैं। Okay, प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट का मतलब जजेस को कैसे उनकी पोस्ट से रिमूव किया जाएगा। Okay, so procedure of impeachment is tough. Okay, Parliament में 2/3 majority of the houses, both the houses of the Parliament, दोनों हाउसेस की 2/3 मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पार्लियामेंट को पास करना पड़ेगा एंड तब जाके प्रेसिडेंट में आस्क द रेजिग्नेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज। उस कंडीशन में क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट जजेस क्या करेंगे? रिजाइन करेंगे। नेक्स्ट, पे एंड अलाउंसेस। ओके, सो सुप्रीम कोर्ट जजेस gets the pay and allowances from the consolidated fund of
इंडिया। ओके, कंसोलिडेटेड फंड से इनको पे मिलते हैं, अलाउंसेस भी मिलते हैं, अलाउंसेस मींस एक्स्ट्रा बेनिफिट, ट्रैवलिंग अलाउंसेस मिलते हैं, हाउस अलाउंस मिलते हैं, एज वेल एज कार अलाउंस, ये सारे अलाउंसेस मींस अदर बेनिफिट्स मिलती है। एंड आफ्टर द रिटायरमेंट दे गेट रेगुलर पेंशन, इनको पेंशन मिलती है, एज वेल एज ग्रेजुटी की जो भी अमाउंट होता है वो भी मिलती है। गॉट इट? एज वेल एज next is immunities of the judges, means no one can question the judgment given by the Supreme Court judge. कोई भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, बी इट पार्लियामेंट और बी इट इन द अदर इंडिविजुअल। कोई ना तो पार्लियामेंट पे, स्टेट लेजिस कोई भी नहीं क्रिटिसाइज करता, अगर कोई करेगा तो उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस होगा। गॉट इट? So next is oath by the judges. Okay, अब oath of the judges of the Supreme Court, Chief Justice of India को oath President देता है and other judges को oath Chief Justice of India दिलवाते हैं। Got it? So President किसको? CJI, Chief Justice of India को President, as well as other judges को CJI, that is Chief Justice of India दिलाता है। ओके, शपथ। ओके, देन बैन ऑन प्रैक्टिस बाय द जजेस। ओके, अब आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस देयर इज बैन ऑन द प्रैक्टिस। ओके, दे कैन नॉट प्रैक्टिस इन एनी कोर्ट। ओके, एज एन एडवोकेट, वो किसी भी कोर्ट में एज एन एडवोकेट नहीं वर्क कर सकते। ऐसा क्यों होता है? जस्ट बिकॉज टू मेंटेन इम्पार्शियल जुडिशरी, इम्पार्शियल जुडिशरी की इम्पार्शियलिटी मेंटेन रहने के लिए ये सारे प्रोविजन दिए गए हैं। गॉट इट? सो दिस इज अबाउट द सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द jurisdictions and powers of the Supreme Court. Okay, now we are going to study about the jurisdictions and powers of the Supreme Court. Okay, so first is original jurisdictions. Okay, now what do we mean by original jurisdiction? Original jurisdiction means such dispute, ऐसे केसेस जो दूसरी अदर कोर्ट्स में नहीं लाए जा सकते, लोअर कोर्ट में नहीं लाए जा सकते, या सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी दूसरी कोर्ट में नहीं लाए जा सकते हैं, such you can say jurisdictions are known as original jurisdiction. Original jurisdiction का मतलब ये हुआ कि सिर्फ इसका हक किसके पास है? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को इस jurisdiction में डिसीजन देने का हक है। Got it? So कौन कौन से हैं? Disputes between the union government and between the one states or between more than one states. Okay? दो स्टेट्स और दो से ज्यादा स्टेट्स के बीच में अगर लड़ाई होगी तो उस कंडीशन में ओनली सुप्रीम कोर्ट विल हियर दैट केस। और अगर एक स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट इनके बीच में अगर लड़ाई होती है तो कौन हियर करेगा? ओनली द सुप्रीम कोर्ट। उस कंडीशन में दे कैन नॉट अप्रोच टू द हाई कोर्ट, दे कैन नॉट अप्रोच टू द लोअर कोर्ट, दे हैव टू अप्रोच ओनली Supreme Court. That is the original jurisdiction. Means only Supreme Court के पास right है decision देने की. Okay? Also dispute in respect of the fundamental rights. अगर किसी person की fundamental right violate होती है, in that condition he can approach to the Supreme Court. But यहाँ disputes jurisdiction which with regarding to the fundamental rights यहाँ High Court के पास भी है. ओके, बट सुप्रीम कोर्ट के पास उससे ज्यादा है। ओके, देन अपीलेट जुरिस्डिक्शन, सेकंड अपीलेट जुरिस्डिक्शन। अपीलेट जुरिस्डिक्शन का क्या मतलब? सिंपली कोर्ट ऑफ अपील। सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। मींस आप वहां अगर इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द जजमेंट ऑफ द लोअर कोर्ट देन यू कैन अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट, बट आपको एक जुडिशरी हायरार्की फॉलो करनी पड़ेगी। दैट इज लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होती है, देन यू हैव टू गो टू हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट। ऐसा नहीं होगा कि लोअर कोर्ट से डायरेक्ट
हाई कोर्ट में आगे, गॉट इट। सो appellate jurisdiction, highest court of appeal, that is constitutional appeal, criminal appeal, civil appeals as well as special appeal। constitutional appeals में जितने भी constitution से related disputes judgment है, okay। then criminal appeals, criminal cases जितने भी murder हो गया ये सब, that will lie in the criminal। civil appeal में marriage, divorce, property dispute, that will lie in the civil appeals। special appeals में कुछ special cases होते हैं, that will lie in the special appeals, okay। next is also consultative function, okay। under article 143 के अंडर president may seek advice of the Supreme Court on the constitutional matter or legal matter, okay। किसी भी लॉ को देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट एडवाइस कर सकता है, ओके, कंसल्ट कर सकता है, ओके। क्या कर सकता है? कंसल्ट कर सकता है, ओके, प्रेसिडेंट, ओके, गॉट इट। सो फॉर एग्जांपल अगर प्रेसिडेंट को कोई लॉ बनी है वो समझ में नहीं आ रही है तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट बाय यूजिंग आर्टिकल 143 ही में कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट। सो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? कंसल्टेटिव फंक्शन भी परफॉर्म करता है। नेक्स्ट इज jurisdiction as to judicial review, that is the most important function of the Supreme Court। अब judicial review क्या होती है? judicial review का simply means reviewing judgment or of the orders of the, you can say, executive as well as the laws passed by the legislative। parliament से जो भी laws pass होती है, executive से, that is government से जो भी orders किए जाते हैं तो उन सबको रिव्यू कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट, ओके। सो दैट दे शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जुडिशियल रिव्यू क्यों दिया गया है कि जितने भी लॉस ऑर्डर्स बने तो उनको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इफ दे आर नॉट इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन देन दे मे बी रिजेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, ओके। सुप्रीम कोर्ट उनको क्या कर सकता है? रिजेक्ट कर सकता है, okay, or you can say Supreme Court can declare null and void, means ये judgment सही नहीं है, इसको खत्म करो, got it। so judicial review, that is the important function of the Supreme Court, okay, that lies in the powers of the Supreme Court। then next is court of record। अब Supreme Court क्या होता है? court of record भी वर्क करता है। जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी जजमेंट हैं, वो सारे का एक डॉक्यूमेंट रिटन रिकॉर्ड मेंटेन रहता है। एंड जो लोअर कोर्ट होती है, हाई कोर्ट होती है, वो क्या करती है? सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बेसिस पर अपना डिसीजन सुनाती है, ओके। सो बेसिकली इट आल्सो वर्क एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन और किसके लिए? लोअर कोर्ट्स और यू कैन से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लिए, ओके। along with that there is other functions, okay, for example inspection and inquiry of the subordinate court, okay। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? जो लोअर मोस्ट कोर्ट होती है उनकी फंक्शनिंग कैसे हो रही है, उनमें कैसे केसेस, उनकी इंक्वायरी और इंस्पेक्शन भी कर सकता है, okay। then to decide the service condition and promotion and termination of the services of its own staff, ओके। अब ये सर्विस जितने भी सुप्रीम कोर्ट का स्टाफ होगा उन सब की सर्विस कंडीशन किसके अंडर रहेगी? सुप्रीम कोर्ट, वो खुद ही कंट्रोल करेगा, ओके। उनकी सर्विस कंडीशन कैसे होगी, उनको टर्मिनेट कैसे किया जाएगा और, ओके। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, पावर टू पनिश एनी पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का क्या मतलब? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का सिंपल सा मतलब कि अगर किसी ने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की बुराई की, उसको क्रिटिसाइज किया इन ओपन स्पेस, then what will happen? The Supreme Court may file the contempt of court, means आपने कोर्ट की क्या की? अवमानना की है, ओके, और आपको अब केस झेलना पड़ेगा, जो भी पनिशमेंट होगी, ओके, in that way। So also important, Supreme Court can punish anyone if someone is you can say criticizing the decision of the Supreme Court, and that will be called contempt of court,
Okay, got it. So these are the powers of the Supreme Court. Okay.